اور ہماری جو جہالت ہے مسلمان دنیا کے اندر، आपके माशरे में अपने हालात को कोई नहीं देख रहा, अपनी गुर्बत को कोई नहीं देख रहा, अपनी बेरोज़गारी को कोई नहीं देख रहा, लेकिन उनको गज़ा की फ़िक्र पड़ी हुई है। तो गज़ा की आपको इतनी फ़िक्र पड़ी हुई है, तो गज़ा के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आप या तो फिर उधर जाने की इजाज़त माँगे हुकूमत से, या फिर आपका एहतजाज पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, हुकूमत से कुछ आपके मुतालबात होने चाहिए। इस तरह से आउटलेट्स जाकर जलानी, और फिर इतनी जहालत कि आप, जैसे वसीम साहब ने बताया कि आपके आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी यहूदियों की बनाई हुई, इज़राइल से ये लिंक्ड है किसी न किसी तरह से, या अमेरिका में बैठे हुए यहूदी हैं, या वेस्ट में बैठे हुए यहूदी हैं, जो जिन्होंने आप जिनकी बदौलत आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वो तो आप नहीं फेंकते। कोई डिसेंट तरीका इख्तियार करो अगर तुम्हें बुरा लगता है। और भी दुनिया में हो रहा है ऐसे, अमेरिका में भी लोगों ने मुजाहरे किए हैं, यूरोप में भी किए हैं गज़ा के फ़लस्तीनियों के हक़ में, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया कि जाके लोगों की, आम लोगों की दुकानें तोड़ दी और उनके वहाँ से बाटा के जूते उठा लिए और वहाँ से वो बर्गर उठा के ले गए। कोई डिसेंट तरीका होता है? तो मैं तो समझता हूँ कि सारे ये लुच्चे और लफंगे थे जिन्होंने ये किया है। एक एम्प्लॉय कितनी सैलरी लेता होगा वहां पे जो काम करता होगा केएफसी में? कोई 30,000, कोई 35,000, इतनी ही सैलरी लेगा, और अब वही बेरोजगार हो जाएगा तो वो बेचारा अपने घर का सर्कल क्या चलाएगा? हम ही खुद अपने मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दुनिया मिल गई है मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने के लिए। इतना वो दौरे शाह की चूड़ियां होती हैं ना, जिनको दिमागों को वो ऊपर वो लगा लगा के, तो इनके हमारी पूरी कौम की इन्होंने ये दिमाग बना दिए हमें कि इनको जिहाद करना है तो इन्होंने अपने घर जलाने हैं। इन्होंने अगर जन्नत का रास्ता ये टिकट काट दिया तो इन्होंने अपना एक मुसलमान जलाना है। इन्होंने अगर कन्फर्म करनी है जन्नत, तो इन्होंने अपनी औरतों को मारना है, गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे, कभी किसी नाम पे और कभी उनके पर्दे के ऊपर। इनका सारा मजहब ले दे के इसी तशद्दुद में आ गए। اور ہماری جو جہالت ہے مسلمان دنیا کے اندر کہ عرب ورلڈ کتنا کو کھڑا ہوتی ہے کشمیر کے ساتھ، جو پاکستان کے اندر اتنے بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی کے ایف سی پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی ڈومینو پیزا پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی جا کے باٹا پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی جا کے پیزا ہٹ پہ حملہ کر رہا ہے۔ بھائی کیوں؟ یہ کے ایف سی، یہ پیزا ہٹ، یہ جو ڈومینو ہے یا یہ باٹا ہے، او بھائی یہ باہر کی کمپنیاں ہوں گی ضرور، بٹ یہ پاکستانی لوگ اون کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی ہم نے یہی دیکھا۔ یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں وائلنٹ ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بغیر نقصان کیے پروٹیسٹ کرنا نہیں آتا؟ میں نے سنا جی کہ باٹا ایک کمپنی ہے which is owned by a چیک ریپبلک کی ایک کمپنی جو ہے، وہ اس کو فیملی اس کو اون کرتی ہے۔ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، باٹا کی دکانیں جلا دی ہے۔ پاکستان میں بھی جوتوں کی ایک دکان ہے، باٹا سروس، یہ مشہور ہے پاکستان کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی کیوں کسی کی دکان کو جا کے جلائے گا؟ جی اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے۔ او بھائی وہ جو کمپنی ہے وہ بنگلہ دیش کے پیسوں سے بنی ہے، بنگلہ دیش کا ایک انویسٹر ہوگا جس نے وہ برانڈ خریدا ہوگا، پھر وہ برانڈ جو ہے اس نے لانچ کیا ہوگا، لوکل بندے ہائر کیے ہوں گے، اس کے ڈالر میں پیمنٹ کی ہوگی، اس نے کیا نہیں کیا ہوگا یار۔ اور آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا اسرائیل سے تعلق ہے، اور وہ تعلق آپ اسٹیبلش بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو چیک ریپبلک ہی ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں تم اسرائیلی ہو۔ یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ دنیا میں پروٹیسٹ کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے قانون کے اندر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ کیا بھارت کے اندر اس طرح پروٹیسٹ ہوتے ہیں؟ جب بھارت اور ویسٹرن ورلڈ دیکھتی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کو کہ یہ اپنی پراپرٹیز جلا دیتے ہیں، اپنے ہی بندے مار دیتے ہیں، اپنے ہی گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنی ہی فیکٹریاں جلا دیتے ہیں، کیوں؟ وہ جی اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا۔ او بھائی اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا تو یہ لاہور میں، کراچی میں، ڈھاکہ، چٹاگانگ کے اندر کیوں کے ایف سی جلا رہے ہو؟ ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، اگر میں صحیح معنوں میں بات کروں۔ اور وہ ایجوکیٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے ان کو نہیں بتایا ہوا کہ پروٹیسٹ کا طریقہ کیا ہے، ڈفرنس آف اوپینین کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ جو وائلنس ہے آپ اس کو وائلنس از ناٹ اے ٹول کہ آپ ہر جگہ اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی پراپرٹیز نہیں ڈیمیج کر سکتے، آپ مذہب کے نام پہ کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔
क्या ये बात सच नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दिए जाते हैं और वो कई दफ़ा उसमें कवानीन आता है कि वो फेक होते हैं और लोग वहाँ पे अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। और इसकी मिसालें लाहौर में, इस्लामाबाद में और बहुत सारी जगहों पे मिली हैं। और आपको पता है वहाँ पे फिर कितनी जगनसाई होती है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आती है। गज़ा के अंदर वो हमें, आप जाके गज़ा की सपोर्ट करते हो। कश्मीर में आलम इस्लाम ने पाकिस्तान को कहा है हम आपकी मदद नहीं करने वाले, आप जाएं छुट्टी करें। पाकिस्तान ने क्या कर लिया? मुझे याद है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यासिर अराफात जो थे पाकिस्तान आए, जनरल मुशर्रफ ने उनको ये कहा कि तुम चलो और आओ कश्मीर को, इंडिया को कंडेम करो। उसने कहा मैं इंडिया को कंडेम नहीं करूँगा। ये कि मुसलमान का एक अलमिया है कि ये कई सौ साल पीछे इनके दिमाग है और वहां से ये वापस, मेरे ख्याल में मुगलिया दौर से ये आगे निकले ही नहीं है। इनको ना अंग्रेज का दौर याद है, ना इनको पार्टीशन याद है, ना इनको। और मुसलमान भी ये वो हैं जो उन मुसलमानों को भी ये मुसलमान नहीं समझते जहां से दीन आया है। इसको मसनूई तौर पे कौम बनाने की कोशिश की गई, इसको शेरवानी पहनाई गई, इसको जिना कैप पहनाई गई, इसको नॉर्दर्न इंडिया यूपी की जुबान उर्दू दी गई, इसे एक आइडियोलॉजी, सो कॉल्ड आइडियोलॉजी दी गई, इसे मुसलमान बनाया गया, इसे कहा गया कि तुम्हारा रिश्ता जो है वो इस ज़मीन से नहीं है, वो यहाँ ये जो अरब पेनिनसुला है ये उससे है, रेगिस्तान से है, इन सरसब्ज ज़मीनों से नहीं है। तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो मज़हब के असूलों पे चलनी चाहिए। तुम्हारे लिए मौसीकी, डांस, मुजस्समा साजी, लिटरेचर ये हराम चीज़ें हैं। तुम इस ज़िंदगी पे फोकस ना करो, तुम एक आने वाली ज़िंदगी पे तवज्जो मरकूज रखो, तुम उसके बारे में सोचो। तुम सर पे टोपी रख लो, दाढ़ी रख लो, तुम शलवार अपनी टखनों से ऊपर कर लो। Need to run Windows on your Mac? Parallels Desktop makes it. तुम ये काम करो। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो घर, दफ्तर, घर, मस्जिद, घर, मस्जिद, घर, मस्जिद, घर। तो फिर आप मुल्क और एक कौम बने कब है? आप तो एक कौम कभी भी नहीं बन सकते। उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ, आपको एक दूसरे के लिए हमदर्दी और एक नेशनलिज्म का लाना पड़ेगा कि हम पाकिस्तानी हैं, कम से कम हम जिस भी मजहब से हैं, जिस भी आपने अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक किया हुआ है। अगर आप कौम होते तो कौम तो अपने नेशनलिज्म पे चलती है कि अपने मुल्क के हिसाब से चलती है, मुल्क के मफाद में चलती है। अब अपने अकलीतों के साथ इतना बुरा सलूक ना करते, अब अपने मुसलमान भाइयों के ही गले ना काटते, आप अपने सिंधी, पंजाबी, बलोची होने के आइडेंटिटी पे एक दूसरे को ना मारते, या एक दूसरे से नफरत ना करते, या एक दूसरे के साथ आप इतना उनाद ना रखते, अब मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर ना कहते। मैं नहीं समझती कि इस मुल्क में आने वाले 100 सालों में भी कभी ये कौम बन सकता है। उसके लिए बहुत जो रूट लेवल पे आकर काम करने की जरूरत है। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले पाकिस्तान में और बांग्लादेश दोनों जगह पर मुसलमानों की जो जाहिलियत है ना, जो ये नंगा प्रदर्शन करते हैं ना, उसको देखकर हंसी भी आती है। और कई बार हम लोग सोचते भी हैं कि भाई इन लोगों को भरता कौन है। वो जो मौलवी मौलाना, उनकी जो स्टेटमेंट वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये लोग तुरंत उनके बहकावे में आ जाते हैं। जरा सा ये नहीं सोचते कि उसका वो क्या करने जा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है वो किसी न किसी मुसलमान की ही चीज होगी। बेशक उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, लेकिन चलाने वाला तो मुसलमान है ना। ये लोग अपने भाइयों को नहीं छोड़ते। जब ये लोग दंगा फसाद करते हैं ना, तो जो भी मुसलमान इनके उसके जद में आता है, उसकी चपेट में आता है, उसको भी मार डालते हैं। और फिर कहते हैं असी भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, दोनों भाई भाई। कैसे भाई हो गए भाई? हाँ, ये भाई बना होता है। जब तुम किसी तुम्हारे अपने की ही दुकान को आग लगा दो, उसको जला दो, ये भाई बना होता है। काफिरों के लिए तुम्हारे मन में एक तरह से चीजें हो सकती हैं, मानते हैं, चलो ठीक है। मुसलमान तो तुम्हारे भाई है ना।
सारी लड़ाई भी तो इसी चीज के लिए है। गजा में क्या हो रहा है, अजी हमारे भाई है, अरे तुम उन भाइयों के लिए, ये जो तुम्हारे सामने भाई खड़ा तुम उसको मार दे रहे हो, इसे जाहिलपना ही कहते हैं भाई। तुम्हारी खुद की हैसियत नहीं है, भीड़ में आके दंगा फसाद करते शर्म नहीं आती? वैसे करो, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमें तो अच्छा ही लग रहा है भाई, करो तुम। और ये लोग बैठकर बातें करते हैं कि देखो यार हमारे देश में क्या हो रहा है, एजुकेशन की कमी रह गई। बातें कब तक करते रहोगे? कोई कदम उठाते हो, तुम्हारी हुकूमत कदम उठाती है, वो तो खुद जाहिल बनकर बैठी हुई है। तो भाई तुम्हारा पूरा देश जाहिलों से भरा पड़ा है। ऐसे देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती।